Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class, that is English for grade 3. We are going to start Unit 3, my dear fellow teachers. This is the SLO-based lecture revision for Unit 3. This is how I'm going to deliver this lecture. You may follow the same or you may have your own way. So first, we'll discuss about SLO-based lecture division for Unit 3, and then we'll discuss a little bit about what this story is. So, my dear students, the title of this unit is Never Lie to Your Family. In lecture 1, under the title of grammar, we are going to learn about simple present tense, and we'll cover the SLO to recognize that actions take place in time. Present, past, or future tense indicates time of action. Use simple present tense for habitual action and for timeless and universal actions. In lecture 2, again under the title of grammar, we learn possessive pronouns, and we'll cover the SLO to show possession by using the pronouns mine, your, his, hers, its, ours, their after the noun. Lecture 3, we'll learn about prepositions, and we'll cover the SLO to illustrate use of some words showing position. Lecture 4, under the title of pronunciation skill, we'll learn soft and hard sound of letter G and syllables of words. And we'll cover the SLO to recognize and articulate hard and soft sound of G, recognize, demarcate, and pronounce 3 and 4 syllable words. Lecture 5, we'll start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to predict what follows in the text using context. Lecture 6, we'll continue reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to retell story in a few simple sentences. In lecture 7, we learn expressing story through pantomime, and we'll cover the SLOs to expressing and understanding of story through pantomime. Find out the characters in a story and give a brief general comment about them. In lecture 8, under the title of listening and speaking, we'll learn how to express our likes and dislikes, and we'll cover the SLO to use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize, and use some formulaic expressions to express likes and dislikes. In lecture 8, under the title of writing, we'll learn descriptive writing, and we'll cover the SLO to use appropriate vocabulary and tense to write a simple guided paragraph by giving general physical description of a person and object. So, my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO-based lecture division for this unit. Now, let's see what this unit is about. Yes, my dear students, its title is Never Lie to Your Family, and its theme is personal safety confiding in family members. Personal safety, हम अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं, कैसे तहफ़्फ़ुज़ में रख सकते हैं, और उसका एक तरीका है अपनी फैमिली पर, अपने ख़ानदान के लोगों पर एतमाद करना. बेटा, ये अल्लाह ताला ने हमें, देखें, फ्रॉम वेरी अर्ली एज अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए, हमारी टेक केयर के लिए हमें पेरेंट्स दिए, और वो हमें डे 1 से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी इतनी अच्छी देखभाल करते हैं. तो उनसे बेहतर हमारा वेल विशर कौन हो सकता है? इसलिए बेटा, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे बहन भाई, हमारी फैमिली, ये अल्लाह ताला ने हमें महफूज करने के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इसलिए दी है कि हम इनके साथ चलें. आई नो समटाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं, नो आई डोंट लाइक दिस इन माय फैमिली. नो, वी शुड नॉट. ओके, ये थैंकलेसनेस है, और अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद. जो हमारे बड़े हैं, हमें हमेशा उनके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है, और जो हमारे छोटे हैं, हमें हमेशा उनके साथ काइंडली बिहेव करना है. ये है
how we can survive nicely in our family. बेटा ये क्योंकि अकेले कोई इंसान इस दुनिया में बेहतर तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकता, फैमिली की हमें ज़रूरत होती है और फैमिली ही ज़रूरत के वक्त हमारे साथ होती है, राइट? ये देखते हैं स्टोरी में ये मैसेज हमें कैसे मिलता है. आई एम हसन. सो एक बच्चा है जिसका नाम हसन है, वो अपनी स्टोरी आपको बता रहा है और वो कह रहा है आई लिव विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर्स. ये उसकी फैमिली में कौन है? उसके पेरेंट्स हैं, उसके दादा अबू और दादी अम्मा हैं और उसके भाई हैं. आई डोंट लाइक टू लिव इन सच अ बिग फैमिली. अब ये देखें, वो बच्चा कहता है इतना बड़ा खानदान है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. क्यों? बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन टू बॉदर मी. हर वक्त हमारे घर में शोर रहता है. ओह दैट्स नॉट गुड. बेटा फैमिली अल्लाह की रहमत है. अब देखें कैसे उसकी सोच बदलती है. वंस माई फैमिली प्लान्ड अ पिकनिक विद माई अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स. फूफो, चचा, ताया सब ने मिलकर एक प्लान किया कि हम पिकनिक के लिए जाते हैं. और हसन ने क्या सोचा? आई थॉट इट वुड बी ए नाइस टू स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड, सो आई टोल्ड देम दैट आई वुड स्टे बैक टू कंप्लीट माई होमवर्क. सारी फैमिली पिकनिक पे जा रही है और हसन ने क्या कहा? उसने कहा ओह शुक्र है ये लोग जा रहे हैं, मैं तो थोड़ा टाइम आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारूंगा. और क्या कहकर उसने ये कहा कि मुझे तो अपना होमवर्क करना है, मैं पिकनिक में आपके साथ नहीं जा सकता. कितनी गंदी बात है ना, बुरी बात है ना. झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए. अब यहां से देखें प्रॉब्लम क्रिएट होती है. ऑल ऑफ देम वर अबाउट, उन्होंने अपना प्लान हसन के लिए कैंसिल करने का सोचा कि नहीं अगर हसन नहीं जा सकता तो हम भी नहीं जाते. देखिए कितने केयरिंग है ना. उन्होंने कहा नहीं हसन को जाना चाहिए हमारे साथ. लेकिन हसन somehow I managed to make them go. ठीक है, हसन ने कहा नहीं नहीं आप लोग जाएं, कोई मसला नहीं है. Finally, after a long time, I was alone at home. सिर्फ ये वो बात थी जिसके लिए हसन ने ये सारा कुछ किया. I started calling my friends to see who was free for an outing. Ahmed and Zain were free and we decided to go nearby lake. We picked our bicycles and set off. अब क्या किया उसने? अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया. अहमद और जैन अवेलेबल थे, उनके साथ हसन अपनी बाइसिकल लेकर करीबी जो लेक है उस पर जाने के लिए निकल गए. I met with an accident on the way. अब क्या हुआ? रास्ते में हसन की बाइसिकल का एक्सीडेंट हो गया. And one moment I was in terrible pain and the next I fainted. Terrible pain means एक लम्हे के लिए मुझे बहुत शदीद दर्द महसूस हुआ और अगले ही लम्हे में बेहोश हो गया. When I opened my eyes, I was in a hospital with a fractured leg and some bandages. अब क्या था? उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी और वो हॉस्पिटल में था. Zain had not hurt himself, so he called my parents and told them about the accident. And soon I was in my bed. I knew everyone would be angry with me because I lied to them. You see? फ्रैक्चर के बाद हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल से घर, और कौन है साथ? फैमिली, पेरेंट्स. हाँ, और अब हसन का ख्याल है कि सब मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने झूठ बोला. और मदर asked me about homework but father told her to keep quiet for some time. मदर पूछना चाह रही थी कि होमवर्क का क्या बना, आप रोड पे क्यों चले गए, होमवर्क क्यों नहीं करते. लेकिन फादर ने, बाबा ने कहा नहीं अभी आप रहने थे, बच्चा पहले ही अपसेट है, उसको चोट लगी हुई है. यू सी बेटा हाउ केयरिंग आवर पेरेंट्स आर. हाँ, और हमें क्या चाहिए? हमें भी उनकी बात माननी चाहिए. From that day on, I saw a different kind of family. अब हसन को एक अपनी फैमिली और तरह से नजर. फैमिली चेंज नहीं हुई, हसन की सोच चेंज हो गई कि फैमिली तो मैं समझता था कि ये मुझे बॉदर करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो हमारी केयर कर रहे होते हैं. ये खाएं, ये ना खाएं, ऐसे पहने, ये ना करें. बेटा ये केयर का ही एक तरीका है जो हमारे पेरेंट्स हमें शो करते हैं. हमें समझ नहीं आती, लेकिन हमें क्या करना है? उनकी बात हमेशा माननी है. और यही हसन के साथ हुआ. उसने कहा मामा मुझे अच्छे अच्छे खाने बना के देती थी, बाबा मेरे लिए मैगजीन्स लाए ताकि मैं बेड में लेटे लेटे बोर ना हो जाऊं, और जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो मुझे मालिश करती थी, और मेरे दादा अबू मुझे स्टोरीज़ अपनी जवानी के किस्से कहानियाँ सुनाते थे ताकि मैं खुश रहूं, और मेरा छोटा भाई जो है वो मेरे साथ गेम्स खेलता था. इस तरह उसकी फैमिली ने हर वक्त उसके लिए कुछ ना कुछ उसकी केयर का, उसका ख्याल, हसन का ख्याल रखने का इंतज़ाम किया हुआ था. फैमिली का मेंबर हर वक्त कोई ना कोई हसन को टेक केयर कर रहा होता था. यू सी हाउ केयरिंग आवर फैमिलीज आर. हाँ, सो on the weekend, my uncles, my aunt brought me gifts and flowers. My cousin Rehan, who was my class. ये देखिए अब सारी फैमिली, उस फुप्पो, चचा, ताया, खाला सब गिफ्ट्स ला रहे हैं, फ्लावर्स ला रहे हैं,
और रेहान जो कि हसन का कज़न था, वो उसका क्लास फेलो भी था, वो उसके लिए स्कूल का काम लेके आता था ताकि उसकी स्टडीज़ का भी लॉस ना हो, वो अपनी स्टडीज़ में भी अपडेट रहे. So it was then realized the importance of family. अब हसन को समझ आ गई कि हमारी फैमिली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है. I cannot imagine what would happen to my life, to me, if I was all alone. अगर मैं अकेला होता और इस तरह से मुझे फ्रैक्चर हुआ होता तो मैं क्या करता? I apologized about lying to my mother. She kissed me and said, "It's okay. You have learned your lesson. I thank God for having such a great family." ये बेटा कि देखें, सबसे पहले हसन को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी सोच गलत थी, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरे पॉइंट पर उसको ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत किया, मैंने झूठ बोला, तो उसने मामा से सॉरी किया, मामा ने उसको प्यार किया. बेटा ये है वो चीज़ जो हमें सीखनी है कि अगर गलती हो भी जाए तो हमने उसको एक्सेप्ट करना है और अपोलोजाइज़ करना है, माफ़ी मांगनी है, ताकि हमें जो हमारे बड़े हैं जब वो हमें माफ़ करते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी हमसे नाराज़ नहीं होते. राइट. सो वी शुड नॉट लाई टू आवर फैमिली. वाई टू लाई? वी शुड नॉट लाई टू एनीवन. हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है. If we speak the truth and share things with them, they will always support us. तो जब हम अपनी फैमिली के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो बजाय झूठ बोलने के अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपने मामा बाबा को बताएं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, तो दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू फैसिलिटेट यू, और वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको आपकी उस प्रॉब्लम को भी आपके लिए सॉल्व करेंगे. ठीक है बेटा. तो हमें झूठ कभी भी नहीं बोलना, इसका हमेशा नुकसान होता है. और आपको पता है कि जो दुनिया में हमें इसका नुकसान नज़र आता है वो तो है ही है, इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है. यू वांट टू नो दैट? ओके. तो ये देखिए कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह ताला सूरह अल हज में फरमाते हैं, वर्स 30, सो अवॉइड द अनक्लीनलीनेस ऑफ आइडल्स एंड अवॉइड फॉल्स स्टेटमेंट. क्या दो चीज़ें अल्लाह ताला ने मना की हैं कि बुतों की पूजा नहीं हमने करनी. ठीक है. ये गलत बात होती है. सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है. कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह की सिर्फ इबादत करें. और उसके साथ ही क्या कहा कि फॉल्स स्टेटमेंट अवॉइड करें, झूठ नहीं बोलना. इसका मतलब है कि झूठ बोलना भी उतनी ही गंदी और बुरी बात है जितना बुतों की पूजा करना है. आपको समझ आई ये बात? जैसे हम सोच भी सकते हैं बीइंग मुस्लिम के हम अल्लाह को छोड़कर किसी की बात माने, अस्तगफिरुल्लाह. तो बेटा इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा कि झूठ भी नहीं आपने बोलना. ठीक है. क्योंकि झूठ बोलने से हमें दुनिया में भी नुकसान है, लोग हमारे से नाराज़ होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं. और एक हदीस हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी स्मेल आती है कि सारी रहमत के फरिश्ते उससे हट जाते हैं. अस्तगफिरुल्लाह. और वो बेचारा फिर जब रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे तो वो कैसे कोई अच्छा या नेक काम कर सकता है. इसलिए बेटा हमेशा सच बोलें, हमेशा अच्छी बात कहें, और अगर आपके पास अच्छी बात नहीं है कहने के लिए तो स्टे क्वाइट. वी शुड नॉट स्पीक. ओके. और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें. और फैमिली का ख्याल रखने का क्या तरीका है? बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से मोहब्बत करें. ठीक है. क्योंकि हमारी फैमिली अल्लाह ताला ने हमें दी है और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है. राइट. तो बेटा कल से इंशाल्लाह हम इसके ग्रामर के लेक्चर से अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे. जो भी अच्छी बातें आज हमने सीखी हैं इनको आपने याद रखना है, इन पे अमल करना है और छोटे बहन भाइयों को भी बताना है. राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. दिस इज़ व्हाट वी लर्न टुडे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.